Fine, so very warm welcome to everyone. Uh, Today we are going to talk about, or for that matter, from today onwards, we are going to take uh, the most important topic as far as the modern Indian history is concerned, the advent of the most popular leader throughout the India's freedom struggle, who had come to India once and for all in 1915, and it has been rightly said that with the advent of this man, he single-handedly took the National Congress Party on a walk along with him for around 3 decades. एक चीज बोली जाती है गांधी जी के बारे में, as far as this personality, as far as this person Bapu is concerned, a phrase is being used that with the advent of Gandhi in the Indian politics, he took along with him the Congress party on a walk for around 3 decades. 30 साल तक मजाक नहीं था भाई, मजाक नहीं था भाई. You see, from today onwards, we are going to talk about the Gandhian era, and as far as you can see, I have already given you the the headers or the pointers on which we are going to talk about the rise of Gandhi in the Indian politics. As far as UPSC, as far as MPPSC is concerned, or the other state services are concerned, you see, few of the fundamental questions were asked in the examination. If I am not wrong, you can go through these questions later. इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो है मैं रिपीट कर देता हूं और फिर उसके बाद फिर हम जो है डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे. इनमें से एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने तो पूछा है, और मेरे ख्याल से ये 2 बार पूछ लिया है यूपीएससी ने, और एमपीपीएससी भी 2019 के बाद लगातार गांधी जी के बारे में क्वेश्चंस पूछ रहा है. और एमपीपीएससी में जो गांधी जी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें बेसिकली आपका ओपिनियन मांगा जा रहा है. हाउ फार डू यू थिंक that Gandhi was responsible for the Congress, for the partition of this country? Of course, the nature of the question was something different, but इस तरीके का क्वेश्चन है. How far do you think? How far do you think कि गांधी जी नहीं भी होते तो भी आजादी मिल जाती? तो कहने की बात यह है कि आप लोगों से स्टेट सर्विसेज हो या यूपीएससी, ऑफ कोर्स यूपीएससी में तो ये ट्रेंड चल ही रहा है और चलता आया है. ठीक है, 1987 का क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ मैंने निकाल करके रखा हुआ है. ठीक, तो तब तो शायद पता नहीं आप लोग पैदा भी नहीं, मैं ही नहीं हुआ था, तो आपकी तो बात दूसरी है. सो द थिंग हियर इज, you definitely are going to get these questions, right? Such of the such kind of questions in near future as well, जहां आपको आपका ओपिनियन, जहां आपसे आपका ओपिनियन मांगा जाएगा. So you must have the facts along with you. You must have a thorough understanding of this person Gandhi. Critics set apart, criticism set apart. अभी साइड में रखो. Fine. I don't know. I heard this thing in some TV show, or from some actor. Uh, he said one beautiful thing. बहुत खूबसूरती से और बहुत बहुत एक सम्मानजनक लहजे से उसने एक बात कही थी कि अगर आपको किसी व्यक्ति का क्रिटिसिज्म करना, इफ यू हैव टू क्रिटिसाइज समवन, इफ यू हैव टू क्रिटिसाइज समवन, यू एटलीस्ट हैव टू रोज टू द लेवल ऑफ दैट पर्सन. बात आ रही समझ में? इफ आई हैव टू क्रिटिसाइज गांधी, एटलीस्ट आई मस्ट हैव the status, not, of course, not on par with Gandhi, but at least I must understand what Gandhi was. जब तक मुझे गांधी जी के बारे में, जब तक मुझे गांधी जी के द्वारा किए गए हुए कामों के पीछे के बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता होगा, और उसके बाद अगर मैं गांधी जी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ फुलिशनेस. ये बेवकूफी है, ये बेवकूफी है. वी आर गोइंग टू टेक फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस. हम कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस को भी लेंगे, हम हाल फिलहाल में चलने वाले क्वेश्चंस को भी लेंगे, ऐसे क्वेश्चंस जो कि पहले पूछे जा चुके हैं उनको भी लेंगे, क्योंकि उनकी संभावनाएं ज्यादा है रिपीट होने की. फाइन.
So from today onwards, we are going to talk about this the new chapter in the modern Indian history that is going to begin from 1915 with the advent of Gandhiji. So I must, I would appreciate if you listen it to, whatever I'm saying quite attentively, quite interesting, having the interest within yourself, generating the interest within yourself, and you are heeding to what I'm saying. Uh, Let MPPSC ask any sort of question as far as the Gandhian movements or the Gandhian era is concerned, you must be able to write the answer from all the facts which I am going to share with you now onwards. 1915 में ये आदमी आया है, 2 साल अपने इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में उन्होंने पूरे के पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम कमाया इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में, एंड देन ही हैड बिकम, आई टेल यू द बैकग्राउंड. चलो ठीक है, शुरू करते हैं. फाइन. शुरू हम करते हैं कि हाउ दिस पर्सन वॉज मेड. यहां से शुरू करते हैं. देखो, जहां तक एमपीपीएससी का सवाल है, मूवमेंट्स को लेकर के क्वेश्चन आएगा आप लोगों से, कुछ कंट्रोवर्सीज को लेकर के क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में. But again, if you have to understand Gandhi, if you have to understand the Gandhian movements, you must have a clear-cut understanding of the personality of Gandhi. You must have a clear-cut understanding of the personality of Gandhi. ये prerequisite है. क्या है? ये prerequisite है. बिना गांधी जी को समझे, इसलिए मैं बोल रहा हूं, criticizing Gandhi is quite easy. Understanding Gandhi ji is quite difficult. Understanding Gandhi ji is quite difficult. देखो, 2 ही चीजें हो सकती है. आज के समय में जो बापू को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या करेगा, मेरा ऐसा मानना है, या तो उसकी बापू के प्रति अंडरस्टैंडिंग कम है या कुछ ज्यादा ही है, उनसे ऊपर है. 2 में से कोई एक ही कंडीशन हो सकती है. देन ओनली यू आर गोइंग टू क्रिटिसाइज गांधी. खाली खुद सोच करके देखो यार, none of the movements started by Gandhi under his leadership had reached to its logical end. All the movements failed. आप तो मुझे एक मूवमेंट का नाम बताओ जिसका कोई एक लॉजिकल रिजल्ट निकला हो, कोई एक ऐसा मूवमेंट जो कि अपने लॉजिकल एंड तक पहुंचा हो. उसके बावजूद गांधी हैड रिमेन्ड unquestioned leader of the masses. Unquestioned leader of the masses. Arey, how to understand this thing? Definitely something in his personality. Definitely something in his personality. So in order to understand the movements of Gandhi, in order to understand the initiatives what Gandhi had started here in India, in order to criticize Gandhi, in order to hail Gandhi, it is fundamentally required from our part to first introspect to the personality of Gandhi. Introspect to the personality of Gandhi. वहीं से हमारा आज का सेशन ही शुरू होने जा रहा है. वहीं से देखो, एक चीज याद रखना, हालांकि who called Gandhi ji and so on and so forth, ये सब वन डे एग्जाम्स के लिए छोड़ दो. प्रीलिम्स के लिए जब रटना होगा तब रट लेंगे. खाली एक चीज याद रखना कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी अंडरस्टैंडिंग को लेकर के परिपक्व है, such a person who is very much inclined towards understanding things, and after having been understood any idea, definitely he is going to try to bring in amends to that particular idea, as far as his own understanding is concerned. कोई भी व्यक्ति जब वो किसी आइडिया को बहुत गहराई से सोचेगा, के ऊपर जब गहराई से सोचेगा और समझ लेगा उस आइडिया की वो आइडिया है, कि मैं एग्जांपल दूंगा अभी आप लोगों को, तो जाहिर सी बात है ऐसा व्यक्ति अपनी सोच के आधार पर, अपनी समझ के आधार पर, अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर उस पर्टिकुलर आइडिया में भी कुछ ना कुछ अमेंड लेकर के आ जाएगा. दैट इचिंग वुड बी देयर. हर इंटेलेक्चुअल के अंदर ये इचिंग होती है
कि यार इसमें किसी ना किसी तरीके से मैं अपना एक एंगल फिट कर दूं। गांधी जी में थी, गांधी जी में थी, गांधी जी में थी, और ये उनकी पर्सनालिटी में दिखता है। एंड दैट इज व्हाई यू सी under his personality we are going to take into consideration 5 most important points or headings: extraordinary intellectual caliber, adaptive personality, reasoning ability, mixture of both moderate and extremist, most amicable personality. What makes Gandhi different than different than the leaders who were had initiated the freedom movement even before Gandhi had come to India? गांधी जी को बाकी लीडर से अलग, गांधी जी खुद को बाकी लीडर से अलग कैसे बनाते हैं, या हम गांधी जी को बाकी लीडर से अलग कैसे आंकते हैं? जाहिर सी बात है। अरे एक एग्जांपल ले लो, तुम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा अपना एक ग्रुप होगा, तुम्हारे ग्रुप में पढ़ने वाले भी व्यक्ति होंगे और पढ़ाई से कोई लेना देना ना रखने वाले व्यक्ति भी होगा जो किसी ना किसी तरीके से इस भीड़ में आ गया है, भीड़ का हिस्सा बन गया है, बट ही इज नॉट इंटरेस्टेड, पर उसका इंटरेस्ट इसमें है नहीं, उसका दिमाग कहीं और चलता है। ही इज क्वाइट गुड इन शेयर मार्केटिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, स्टॉक मार्केटिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, but not interested to prepare for civils. However, he is part of your group. तुम प्रीलिम्स निकाल रहे हो, मेंस दे रहे हो, इंटरव्यू तक पहुंच रहे हो, तुम्हारे ग्रुप में कुछ ऐसे लोग हैं जो इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं, मेंस निकाल रहे हैं, रेगुलर प्रीलिम्स निकल रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, और उस अकेले एक बंदे का तुम्हारे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन से कोई लेना देना नहीं है, तब भी वो तुम्हारे ग्रुप में बहुत अट्रैक्टिव पर्सन है। अट्रैक्टिव इन सेंस हर कोई उससे दोस्ती रखना चाह रहा है, हर कोई उसका साथ चाह रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसकी पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ आप लोग देखते हो। यू फील लाइक दिस पर्सन्स पर्सनालिटी इज क्वाइट अडैप्टिव। इस व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है, इससे आप लोगों को लगाव है। फाइन। ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने हिंदुस्तान में आकर के कुछ ज्यादा बड़ा काम कर दिया था, बस डिफरेंस ये है कि गांधी जी ने वो कर दिया जो लोग शायद सोच भी नहीं पा रहे थे। बहुत बेसिक सी चीज थी, बहुत बेसिक सी चीज, एंड दैट हैड मेड द डिफरेंस। पर्पल काउ इफेक्ट आप लोग पता नहीं सुने हो कि नहीं सुने हो, बिजनेस में, मैनेजमेंट में पर्पल काउ इफेक्ट नाम से एक थ्योरी चलती है। सेम चीज, जस्ट बिकॉज गांधी जी हैड डन, he had become the trend setter, he had become the first person to initiate those ideas, बस इतना ही हुआ और कुछ नहीं। So let us start with Gandhi. His personality, what is so interesting about his personality that had made Gandhi quite different from amongst the leaders of the existing times, of the contemporary times? तो एक एक करके हम इनकी पर्सनालिटी को डिस्कस करना शुरू करते हैं। You see, the first important thing, और I should say कि इन 5 पॉइंट्स के अलावा आप एक शब्द यहां और लिखो। I should write here 6th. Paradigm shifter. Paradigm shifter. बहुत आराम से और बहुत समय लेकर के मैं गांधी जी को पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहां से यार रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं, फ्रीक्वेंटली यू आर गेटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन। एक 6th हेडिंग भी आप लोग लिख लेना, पैराडाइम शिफ्टर। नाउ लेट मी फर्स्ट कंप्लीट टू दीज हेडिंग्स एंड देन आई विल स्विच टू द लास्ट वन, द पैराडाइम शिफ्टर। देखो याद रखना, कोई भी व्यक्ति, आई डोंट नो, आई वुड I would advise you to read one text of Gandhi, हिंद स्वराज, 75 पेज की किताब है, ठीक? अगर आप ये हिंद स्वराज पढ़ोगे ना, तो हिंद स्वराज में गांधी जी ने कुछ बातें कही हैं जो I feel like there are 2 to 3 things
what Gandhi ji wanted to know, wanted to share to its people. हिंद स्वराज में गांधी जी लिखते हैं कि यार महज अंग्रेजों से छुटकारा पाना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मतलब इस बात को समझने वाली चीज है, अंग्रेज तो हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएंगे, कभी ना कभी चले ही जाएंगे, पर सबसे बड़ी चीज यह है कि अंग्रेजों के हिंदुस्तान जाने के बाद, हिंदुस्तान से जाने के बाद, आफ्टर हैविंग the Britishers, after having living in India, what would remain in India is the Western culture. What would remain in India is Western culture. Are we Indians going to accept this culture? Are we Indians are going to accept this culture? सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन गांधी जी ने हिंद स्वराज में ही रखा है। 75 पेज की किताबें शुरुआत में आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बोर हो रहा है, बट इफ यू रीड इट विथ इंटरेस्ट, डेफिनेटली यू विल बी डैम थ्रिल्ड टू इवन क्रिएट अ परसेप्शन दैट हाउ दिस मैन वाज थिंकिंग। ये व्यक्ति सोच कैसे रहे थे, किस हद तक सोच रहे थे। गांधी जी ने हिंद स्वराज में लिखा कि यार ये डॉक्टर है, ये वकील है, इन लोगों ने हिंदुस्तान को कंगाल कर दिया। मॉडर्न इंडस्ट्री है, इसने हिंदुस्तान को कंगाल कर दिया। अब आज लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि गांधी वॉज अगेंस्ट मॉडर्नाइजेशन, गांधी वॉज अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, गांधी वॉज अगेंस्ट प्रोफेशन। अरे तुम क्या प्रोफेशन की बात करोगे? वो आदमी जो साउथ अफ्रीका अपने प्रोफेशन के लिए गया और दूसरी तरफ अपना प्रोफेशन छोड़ वहां के लोगों पे समा गया, वहां के लोगों के उत्थान के लिए अपनी पूरे के पूरे 20 साल लगा दिए, तुम उसको प्रोफेशन के हिसाब से क्रिटिसाइज करोगे? अरे लॉयर बनने गए थे बापू, लॉयर बनने गए थे बापू। साउथ अफ्रीका के ट्रेन का वाकया है कि जब उनको फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से धक्के मार के निकाल दिया गया था, दैट हैड kicked the dignity, the idea dignity of बापू। खाली खुद सोच करके देखो, तुम फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रेवल कर रहे हो, जस्ट इमेजिन तुम फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रेवल कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है हमारी वेशभूषा उस कंपार्टमेंट और उस कंपार्टमेंट में ऑलरेडी मौजूद लोगों के अनुसार होगी। मैं तो चाहूंगा यार बढ़िया जूता और I'll dress myself like something that yes, my dignity will be reflected. I'm a dignified person, ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये मैं सोच करके उस फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में जाऊंगा। गांधी जी भी वैसे ही गए थे, लॉयर की वेशभूषा में एकदम तैयार वैयार होकर के सज धज के गांधी जी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में गए हैं। उनको लगा इज्जत मिलेगी, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट है भैया, कॉमन आदमी के लिए नहीं है। उनको लगा इज्जत मिलेगी, लात मार दिए गए, उनकी इज्जत को ठेस पहुंच गई। इंसान बदलाव की बात सिर्फ तब करेगा जब इज्जत पर ठेस पहुंचेगी, इसके अलावा नहीं, इसके अलावा नहीं। When your dignity will be questioned, definitely your behavior will change all of a sudden. Your attitude will change all of a sudden. और ये कारण था गांधी जी के बदलाव का। अब्दुल्ला एंड कंपनी के लिए केस लड़ने गए। अब्दुल्ला एंड कंपनी 1 साल का मैटर था, महज 1 साल के लिए गए थे, महज 1 साल के लिए गए थे और 20 साल रुक गए। साउथ अफ्रीका में लोगों ने उनसे बोला कि महाराज 1 महीना और रुक जाओ थोड़ा, बिकॉज गांधी हैड गेन पॉपुलैरिटी। महाराज 1 महीना रुक जाओ, हमारी खातिर रुक जाओ। और वो 1 महीना 20 साल में बदल गया। 1 महीना 20 साल में बदल गया। गांधी के खुद के घर वाले उनको चिट्ठी लिख रहे, बोले तूने हमको धोखा दे दिया। हाउ आर यू गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस पर्सन गांधी? It will definitely take lot of courage for anyone to understand Gandhi. ये गांधी है। Now you see what Gandhi is asking. हिंद स्वराज में गांधी जी ने 2 फंडामेंटल क्वेश्चन बोले हैं। अंग्रेज तो हिंदुस्तान से चले जाएंगे,
Britishers will leave India. But then what? We, the Indians, are we going to accept the British culture? What they had thrown open to us after the Britishers going, back to England, leaving India? क्या हम इस ब्रिटिश कल्चर को अपना पाएंगे या क्या हमको अपनाना चाहिए? फंडामेंटल क्वेश्चन. जवाब दो, जवाब दो. दूसरी चीज, this modern industry, doctors and lawyers had degenerated the Indian culture, had corrupted the Indian culture. यहां इसका मतलब ये नहीं था कि गांधी was against the modernization, industrialization. Gandhi was against the profession. No, it does not mean so. People started criticizing that बापू तो भैया डॉक्टर्स के खिलाफ थे, बापू तो लॉयर्स के खिलाफ थे. लॉयर के खिलाफ होते तो जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अंबेडकर जैसी पर्सनालिटीज इंडियन पॉलिटिक्स में उभर नहीं पाती, कम से कम तब तक जब तक गांधी के हाथ में कमान थी. What Gandhi actually mean from this statement is ये modern industrialization, profession like doctors, profession like lawyers, भाई ये सब अंग्रेजी कल्चर की ही तो देन है, ये सब वेस्टर्न सिविलाइजेशन की ही तो देन है, ये सब ब्रिटिश कल्चर की ही तो देन है. अंग्रेज नहीं होते हिंदुस्तान में तो हमारी अपनी व्यवस्था होती. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग. Gandhi had not only criticized the British but the whole of the Western civilization. He had challenged the whole of the Western civilization. भैया एक तरीका तो ये भी हो सकता है ना कि अंग्रेज तुम हमारे ऊपर हुकूमत करो, और जाहिर सी बात है एक सवाल ये भी बनता है that we the Indians allowed the English to rule upon us. चलो ठीक है, एक सवाल ये भी बनता है कि अंग्रेज ठीक है तुम हमारे ऊपर हुकूमत करो पर हमारे जैसा बन के तो करो. Why not you the fellows, you try to mend yourself in the Indian culture, whereas you are imposing the Western culture onto us. And see the shameless Indians accepting the Western culture even after independence of this country. मर गया वो आदमी बोल बोल के. How are you going to understand Gandhi? One leader who was definitely the product of his time and condition, only because of his personality. Only because of his personality, Gandhi had remained the unchallenged leader of the Indian masses. I can debate. No criticism against Gandhi proved valid till now. Until now. No criticism, मैं आऊंगा इसके ऊपर. No criticism ever had proved valid against one person in the Indian freedom struggle, and it is Gandhi. We are going to first you live the subject. आपको लग रहा होगा कि यार भाषण नहीं है, सब्जेक्ट को जियो. सिलेक्शन सेकेंडरी भैया, पहले सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होगी, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन होगा, तब जाकर के आंसर लिख पाओगे और तब जाकर के सिलेक्शन की बात करोगे. Inculcate interest if if you don't have interest in subject history, you must inculcate this interest. My guru told me this, who taught me history, कि बेटा जब तक इंटरेस्ट नहीं बनेगा तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते. इंटरेस्ट नहीं है, बनाना पड़ेगा. कल्टिवेट इंटरेस्ट. लिव दिस पर्सन हु द पर्सन द गांधी वाज. इनको जीने की कोशिश करो, इनको समझने की कोशिश करो, और एक बार समझ लिया देन डेफिनेटली it would be a cakewalk to write anything about to write quite logical about what the MPPSC is asking you to write. You can give logical answers अगर एक बार समझ लिया तो. तो ब्रिटिश हुकूमत को अकेली चैलेंज नहीं कर रहे हैं, पूरे के पूरे वेस्टर्न सिविलाइजेशन को चैलेंज कर दिया गांधी ने. I hope you are understanding this thing. Posing the questions to the Indians that are you going to accept the British culture even after the Britishers are
forced to go to the go back from this country. तुम एक्सेप्ट कर पाओगे इंडियंस के ऊपर? मैं आ रहा हूँ इस ये टैक्टिक्स हैं जो गांधी ने सीखी, जो उस टाइम हिंदुस्तान में मौजूद किसी भी लीडर ने सोची भी नहीं थी। ये टैक्टिक्स हैं। ही लर्न द आर्ट, कला थी, स्किल था, जिसको गांधी ने मास्टर किया। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। पैराडिम शिफ्ट बताऊंगा, पैराडिम शिफ्ट क्या होता है। फाइन। सो हाउ गांधी हैड बिकम द अनक्वेश्चन्ड लीडर ऑफ द मासेस हियर इन इंडिया। तो 15 से लेकर के 17 तक यार वही चीज है, मतलब नो लीडर हैड एवर थॉट कि ब्रिटिश हुकूमत को मना करने का तरीका कुछ और भी हो सकता है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। बिपिन चंद्रा लिखते हैं अपनी किताब में, कि जब गांधी जी चंपारण गए, ठीक, मैंने ये सब वाक्य आप लोगों को बताया था, एक ऐसी एक छोटा सा एक कॉन्वर्सेशन हो चुका है। गांधी जी जब चंपारण गए तो चंपारण में फार्मर्स का हुजूम लग गया। इंडिगो कल्टीवेटर्स, रेलवे स्टेशन में हजारों की तादाद में फार्मर्स आ गए और गांधी के नाम का नारा लगाना शुरू कर दिया। चंपारण के तब के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर he outrightly asked Gandhi to leave Champaran now without wasting a single minute. चंपारण के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लग रहा है कि भाई यहां तो विद्रोह हो जाएगा, यहां तो एनार्की हो जाएगी। हजारों की तादाद में ये इंडिगो कल्टीवेटर जो अब तक अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे, वो गांधी के सपोर्ट में नारे लगा रहे हैं। तो चंपारण का तो भाई साहब माहौल शायद हो सकता है खराब हो जाए। चंपारण के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने गांधी को आदेश दिया कि भैया खाली, तत्काल प्रभाव से चंपारण खाली करो। छोटी छोटी चीजें हैं, खाली नोटिस करो आप लोग, छोटी छोटी चीजें हैं। गांधी ने सिर्फ मुस्कुराते हुए मना कर दिया। अरे बोले नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। हिंदुस्तान में तब होम रूल मूवमेंट चल रहा था। मैडम एनी बिसेंट और बाल गंगाधर तिलक सक्रिय थे इंडियन पॉलिटिक्स में। Even they were shocked after having been known that one leader there in Champaran had denied to the orders of the authority, that too quite politely. ये सब कला है भाई। गांधी जी के आने से पहले no leader had ever even thought of such skill. क्योंकि गांधी जी के आने से पहले मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस पार्टी में खुद गुट बटे हुए थे। मॉडरेट्स वर वेरी मच मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट सिर्फ नारा लगा रहे हैं। और जैसे ही अंग्रेजी हुकूमत से कोई भी या अथॉरिटी से कोई भी आदेश आता था तो एक्सट्रीमिस्ट मान लेते थे, क्योंकि उनको पता है कि नहीं मानेंगे तो डंडे बरसेंगे, सुझा दिए जाएंगे। पर पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में, फ्रीडम स्ट्रगल में पहली बार किसी लीडर ने मुस्कुराते हुए अथॉरिटी के आदेश को नकार दिया। कलेक्टर ने जब गवर्नर जनरल से इसकी कंप्लेन की तो गवर्नर जनरल बोल रहे भैया ये साउथ अफ्रीका में मसीहा था, इससे पंगा मत लो, करने दो। फिर चंपारण में इंडिगो कल्टीवेटर्स के लिए कमेटी बनाई जाती है। एंड दैट पर्टिकुलर सत्याग्रह, आऊंगा ये सब शब्दों पर आऊंगा, दैट पर्टिकुलर सत्याग्रह ऑफ Gandhi had proved success in his own capacity. He was not then the member of the Congress party, remember. चलो यहीं से शुरू करते हैं। The personality of Gandhi, how the personality of Gandhi was nurtured. मैं यहां से शुरू करता हूं, ठीक है। जो भी कुछ था गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में, ठीक है, इसके ऊपर हम, क्योंकि धीरे धीरे हमको मूवमेंट शुरू करना है तो हर मूवमेंट के बारे में उसके बैकग्राउंड को जब मैं लूंगा तो मैं उसमें गांधीयन पर्सनालिटी का बैकग्राउंड जोड़ता चलूंगा।
गांधी जी हिंदुस्तान आए 1915 में। गांधी जी हिंदुस्तान आए 1915 में। ठीक है, प्रवासी दिवस मनाते हैं हम जनवरी में। खाली खुद सोचो इनकी पर्सनालिटी ना, खाली खुद सोचो। When Gandhi he came to India, he had submitted his application to be the member of the Congress party. Just try to imagine. ठीक है, leave the subject, इसलिए मैं बोला इस शब्द को जियो। Just try to live this subject. When Gandhi had come to India, he had submitted his application to be the member of the Congress party. The then General Secretary of the Congress party, Mr. Jaikar, he had rejected the candidature of Gandhi. Reject कर दिया भाई। अरे Gandhi could not tolerate to see that Congress party was the party of the stalwarts, whereas these stalwarts having no interest to make any sort of connection to the common man. जनता के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, सूट बूट हैट टाई वाले लोग कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं। ऐसे आजादी मिलेगी क्या? Remember, entry to the entry of Gandhi in the Indian politics was not a red carpet for Gandhi. It was not a red carpet for Gandhi. ये मत सोचना कि गांधी जी हिंदुस्तान आए और बस फिर एक अलग ही लहर ना, बिल्कुल नहीं भैया। गांधी को समझने में लोगों ने देरी कर दी। गांधी का कैंडिडेचर को ही रिजेक्ट कर दिया, मेंबर नहीं बना रहे हैं गांधी को। गांधी जी सेशन को संबोधित करने के लिए उठे, पंडाल खाली हो गए, पंडाल खाली हो गए। If you are going to treat such an intellectual who had mastered almost all the intellectual currents of the world of those times, definitely it is going to hurt the dignity of a person, such a person. भैया मुझे लग रहा है कि यार मैं इस काम में बहुत काबिल आदमी हूं, मुझसे बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता, और फिर तुम मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे। ठीक है, if you are not going to give opportunity to me to stand, if not an opportunity, but definitely if you are not going to give me a chance to prove me, I will try to create an opportunity for myself. इतिहास है, मॉडर्न इंडिया, नॉट जस्ट मॉडर्न इंडिया। अरे हमने तो कौटिल्य की बात करी, हमने समुद्रगुप्त की बात करी, हमने अकबर की बात करी। Now we are talking Gandhi. Before Gandhi we have talked about Shivaji, we have talked about Pratap. एग्जाम्पल्स है हमारे सामने कि अगर तुम अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लेंगे। और एक बार अगर हमने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, वी वोंट अलाउ एनीवन टू स्टैंड अगेंस्ट अस। ये पर्सनालिटीज हुए हिंदुस्तान में, उनमें से गांधी एक है। गांधी एक है। ऐसा क्यों हो पाया? बिकॉज गांधी हैड मास्टर्ड ऑल द इंटेलेक्चुअल करेंट्स ऑफ दोस टाइम्स, ऑल द इंटेलेक्चुअल करेंट्स ऑफ दोस टाइम्स। यू नेम एनी। अब आ रहे हैं हम मुद्दे पर। साउथ अफ्रीका में गांधी की मुलाकात होती है लियो टॉल्स्टॉय से। गांधी हैड मेट अ पर्सन कॉल्ड लियो टॉल्स्टॉय, जिनके नाम पर उन्होंने एक आश्रम बनाया, फिनिक्स आश्रम। यू हैव दिस मॉल, फिनिक्स मॉल, राइट, हियर इन इंदौर। Where did they get the name? Where from they get the name? What is the name of the ashram in South Africa by Gandhi for Leo Tolstoy to show cause his friendship. Leo Tolstoy had written one text. Leo Tolstoy ने ना एक किताब लिखी। Leo Tolstoy ने ना एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है द किंगडम ऑफ गॉड। द किंगडम
of God is within you. Remember, remember, ये एक ऐसी किताब थी, ये एक ऐसी किताब थी जिसने गांधी की पर्सनालिटी को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस किया, बहुत हद तक. लियो टॉल्स्टॉय वाज अ यूनिवर्सलिस्ट टॉल्स्टॉय, यूनिवर्सलिस्ट टॉल्स्टॉय. Here in this book, The Kingdom of God is Within You, Leo Tolstoy had talked about the human side of the person. Gandhi understood this thing. Gandhi had understood one thing, that every man, human being, is the product of his sentiments. Every human being is the product of his sentiments. And Gandhi mastered the art of touching the sentimental or the human side of a person. यही तो उन्होंने किया, यही तो उन्होंने किया. Gandhi had mastered this art of touching the human side of the person. खाली खुद सोचो यार, खाली खुद सोचो. कोई आदमी शब्दों में इतना पोलाइट है, a person so modest, a person so soft in his words, if that person asks you anything, it is quite difficult to deny his request, reject his request. It is quite difficult to say no to that person. मना ही नहीं कर पाओगे. That means what? He's touching the emotional side, sentimental side of your, personality. Gandhi had mastered it. गांधी को एक चीज समझ में आ गई कि यार लोगों के सेंटिमेंट्स अगर हमको मिल जाएं या मेरे फेवर में आ जाएं, तो जाहिर सी बात है, आई विल बी दी ruler of the masses. I'll be the leader of the masses, not ruler, pardon me. I'll be the leader of the masses. This is what he had done. And it is just like this. अपने घर में ही कलेश होते हैं. We tend to quarrel. We tend to quarrel with our father, with our mother. But then you see, at the end of the day, what happens? A gentle touch of your father, a gentle touch of your mother melts you. Why? Because they know this fact that this person's emotions, sentiments, इनको टच करना है. धीरे से सर पे हाथ फेरते हैं और बस पिघल गया भैया आदमी, पिघल गया बच्चा. गांधी ने ये सब कहां से सीखा? जस्ट इमेजिन, गांधी जी ने ये सब इस किताब से सीखा. द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू. एक पर्सन हुए मैक्सिम गॉर्गी. एक व्यक्ति और हुए, मैक्सिम गॉर्गी. मैक्सिम गॉर्गी ने एक किताब लिखी 1906 के आसपास, दी मदर. दी मदर. This particular text, it deals with the unfaithful life of the working classes in Russia. Gandhi mastered the art and became the messiah of the working classes. The condition of the working classes, Gandhi championed the cause of the condition of the working classes here in India and became their leader. कहां से आ रहा है भैया ये सब आइडिया? कहां से आ रहा है? You have Ruskins. Ruskins ने लिखी है किताब Unto the Last. Ruskins Unto the Last. हम एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं. हम एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं. असल में कर रहे हैं? ये सवाल हमको खुद से पूछना चाहिए. वी मस्ट आस्क दिस क्वेश्चन टू आवरसेल्फ. Unto the last का एसेंस क्या है? What is the essence of this text called Unto the Last? It is here in this text, Unto the Last, it has been portrayed that any work what you have initiated by your own, it must be your responsibility
टू गेट दैट वर्क टू इट्स लॉजिकल एंड। ऐसा कोई भी काम जो तुमने खुद शुरू किया हो, ये तुम्हारी जवाबदेही है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उस काम को अपने अंजाम तक पहुंचाना है। अगर मैंने अपनी मर्जी से एमबीपीएससी चुना है, अगर मैं इस फील्ड में, इस कंपटीशन में अपनी मर्जी से आया हूं, आई मस्ट सी इट्स लॉजिकल एंड, आई मस्ट टेक दिस प्रिपरेशन टू इट्स लॉजिकल एंड। किसी भी काम को बीच में मत छोड़ो। यू माइट क्वेश्चन कि बापू ने तो हर मूवमेंट को बीच में ही रोक दिया, उसके पीछे की भी कहानी है। दैट इज व्हाई ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्सन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्सन। कहां से आ रहा है ये इंटेलेक्चुअल करेंट? डेफिनेटली गांधी, he had mastered the art, mastered all the intellectual current of the world। ये सारी की सारी चीजें गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में रहते हुए ही कर ली थी। हिंदुस्तान में तो इनको सिर्फ गांधी ने एक्सपेरिमेंट किया। बात आ रही समझ में? हिंदुस्तान में तो गांधी जी ने इन सबको एक्सपेरिमेंट किया। अरे सत्याग्रह, फ्रेंच पॉलिटिकल साइंटिस्ट, यू हैव थोरो, you have one French political scientist, Thoreau. It was the idea of Thoreau, he had written the pamphlet Satyagraha Civil Disobedience। ये सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस का जो आइडिया है, ये गांधी जी ने वहां से बोरो किया। The idea of सर्वोदया, आप लोग पढ़ते हो, idea of सर्वोदया गांधी had borrowed from the text of Ruskin unto the last। गांधी यूज्ड टू टॉक अबाउट रामराज, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। गांधी जी यूज्ड टू टॉक अबाउट रामराज। तो गांधी जी के एक और एक और ऐसे पर्सन है जिन्होंने गांधीयन पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करने में अपनी एक भूमिका निभाई है। उनका नाम है एडविन आर्नोल्ड। उनका क्या नाम है? उनका नाम है एडविन आर्नोल्ड। इन्होंने एक किताब लिखी है सॉन्ग सेलेस्टियल। ही हैड रिटन वन टेक्स्ट कॉल्ड सॉन्ग सेलेस्टियल। Song Celestial is nothing but the translation work of भगवद गीता। ट्रांसलेशन है भगवद गीता का Song Celestial। Gandhi was more impressed by this translation than the original Bhagavad Gita। Gandhi ji was very much moved with this translation। So intellectual caliber, intellectual current, Gandhi had mastered almost all of the contemporary times। That had become one of the reason why Gandhi had become so popular amongst the masses। किसी और लीडर के पास तब हिंदुस्तान में इतना क्वालिफिकेशन नहीं था, इतना क्वालिफिकेशन नहीं था, तब तो नहीं था। डोंट ब्रिंग इन अंबेडकर हियर, अंबेडकर की एंट्री बहुत बाद में होती है। So one reason। Then what was the other reason? What was so great about Gandhian personality? You see the other reason, the other factor। गांधी, देखो एक चीज याद रखना, a merit of a leader, it lies on a fact that how well a leader he assesses the situation and then try to change his actions according to the situation। एक अच्छे लीडर की, एक काबिल लीडर की खासियत क्या है? एक अच्छे लीडर की, एक काबिल लीडर की खासियत यही है कि भाई वो सिचुएशन के अनुसार खुद को भांप ले और खुद को ढाल ले और अपने एक्शंस को उसी अनुसार अंजाम दे। गांधी से बेहतर अडैप्टिव पर्सनालिटी किसी की भी नहीं थी। अडैप्टिव पर्सनालिटी, गांधी से बेहतर अडैप्टिव पर्सनालिटी किसी की भी नहीं थी। he won't hesitate। इसलिए मैंने बोला किसी भी मूवमेंट को बीच से ही गांधी अगर रद्द कर रहे हैं, इनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, ये क्वालिटी है इनकी पर्सनालिटी की। he will assess the situation and then take the action accordingly, and then take the action accordingly। सिचुएशन को भाप लेते थे, सिचुएशन को भाप लेते थे। भैया इसका एग्जांपल है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। Where is it visible that Gandhian personality was more so an adaptive personality? कहां से पढ़ के आए गांधी? साउथ अफ्रीका से। वहां भी तो वेस्टर्न कल्चर है,
if you happens to read, now you see the point here. You must have seen almost all the photographs of Gandhi where he is visibly in dhoti and kurta, not kurta basically, a gown, एक you know unstitched cloth है और धोती है. कहीं भी आप लोगों को you'll hardly get an image of Gandhi where he has been, he is visible wearing suit, boot, hat, tie. गांधी जी की साउथ अफ्रीका की फोटो देखो और फिर गांधी जी हिंदुस्तान आने के बाद की फोटो देखो गांधी जी की 1915 के बाद की. Contrasting difference. If you see the photographs of Gandhi in South Africa, you will see him wearing suit, boot, hat, tie, westernized Gandhi. As soon as he entered India, this westernized Gandhi had turned to Indianized Gandhi, discarded everything, turned to dhoti, earned the name half-naked fakir. क्यों किया इन्होंने ऐसा? Because Gandhi knew, if I have to stand for the cause of the Indians, I must reflect myself as one amongst them. बात आ रही समझ में? गांधी जी को ये चीज समझ में आ गई कि भैया अगर मुझे अपने देशवासियों के लिए खड़ा होना है तो मुझे उनके तरह देखना पड़ेगा, मुझे उनके जैसा रहना पड़ेगा, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट करनी पड़ेगी. जो ये सूट बूट है, जस्ट इमेजिन अगर मैं क्लासरूम एंटर करूं सूट बूट हैट टाई पहन करके, डेफिनेटली यू वोंट ट्राई टू कनेक्ट विथ मी. तुम मुझसे कनेक्ट नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि मैं अलग दिखने की कोशिश कर रहा हूं. वहीं अगर मैं तुम्हारे जैसे पहनावा पहनने लगूं, डेफिनेटली यू विल फील मी समवन फ्रॉम अमंगस्ट यू. तुम मुझे अपने जैसा ही ट्रीट करोगे. फिर हमारे बीच में जो कनेक्शन है वो मजबूत होगा. ये गांधी जी समझ गए थे. इफ आई हैव टू स्टैंड फॉर द deprived condition of our fellow Indians, I must reflect myself as someone from amongst them. I hope you are understanding this thing. ये बहुत जरूरी है आप लोगों को समझना ये चीज. कोई और लीडर ऐसा कर ही नहीं रहा था. इसलिए मैंने बताया शुरुआत में, when Gandhi came to India, he had seen handful of elite sections of the society are running the Congress party, wearing suit, boot, hat, tie, not even trying to create any sort of connection with the common masses. इसलिए देखो गांधी जी ने क्या किया. गांधी जी ने ठीक इसी समय पर 1915 में गांधी जी आए. ठीक इसी समय पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन था. मदन मोहन मालवीय साहब गांधी जी को बुलाते हैं इस इनॉग्रल सेरेमनी में. और इस इनॉग्रल सेरेमनी में ही गांधी जी ने पहली बार यह आइडिया पुट फोर्थ किया था कि अगर हम हर एक गांव को, लाखों गांव को अगर हम कांग्रेस पार्टी के आंदोलनों से जोड़ दें, तब जाकर के फ्रीडम स्ट्रगल में एक मजबूत स्थिति पैदा हो पाएगी. हमारी फ्रीडम स्ट्रगल को मजबूती मिलेगी, कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी. इसलिए मैंने बोला क्या, इफ यू आर नॉट गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू prove myself, definitely I'll create an opportunity for myself. गांधी जी वही कर रहे थे. आप लोगों ने पहला सवाल देखा होगा, टॉप क्लास गेम एट हायर लेवल. यूपीएससी ने बेहतरीन सवाल पूछा. Gandhi's entry to the Indian politics was a top class game at higher levels. क्या था? यही था. कांग्रेस पार्टी ने मेरा कैंडिडेचर रिजेक्ट किया. I will ask the Congress, I'll create such a situation, I'll create such a condition where Congress party itself will come to me to ask me to run a movement. वही किया इन्होंने, वही किया. Brilliant Gandhi, brilliant. You can question him in person.
फाइन। तो मदन मोहन मालवीय साहब ने जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन में गांधी जी को बुलाया, तब उन्होंने सबसे पहली बात यही बोली, बोले कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले इंडियन मासेस से कनेक्शन बैठाना जरूरी है। ब्रिंग इन द विलेजेस, allow the people from the villages to come to the Congress party to be the member, and then you see how the freedom struggle gains momentum, how it would provide a strength to whole of the freedom struggle, freedom movement. यही चीज उन्होंने बोली। Then you have another reason, amicable personality. Amicable personality, चलो amicable personality से पहले हम इनके impeccable reasoning के ऊपर बात करते हैं। impeccable reasoning, remember, आप लोगों ने मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सुना होगा। गांधी के रीजन से कोई बच नहीं पाया। मतलब गांधी अगर बोलेंगे ना कि बेटा आई हैव टू किल यू फॉर योर ओन बेनिफिट सो दैट यू अटेन साल्वेशन, यू कांट डिनाई दिस पर्सन। अगर गांधी जी मुझे बोले, कन्विंस करने की कोशिश करे और मुझे बोले कि यार तुझे मारना तेरे खुद के बेनिफिट के लिए है, तेरे को साल्वेशन मिलेगा, तो मैं बोलूंगा मार दो बापू। ही विल गिव सच अ रीजन दैट आई वोंट बी एबल टू डिनाई। मोहम्मद अली जिन्ना लियाकत अली से बोल रहा है, यू लियाकत भाई 5 मिनट से ज्यादा इस आदमी से बात मत कर लेना। यू लियाकत अली 5 मिनट से ज्यादा गांधी से बात मत कर लेना, क्योंकि अगर 5 मिनट से 6वां मिनट हुआ, गांधी विल मेक श्योर दैट ही विन ओवर यू टू हिज साइड। क्या बोलते हैं, दंडवत प्रणाम करने लगेगा। सच एन इम्पेकेबल रीजनिंग। और इसलिए मैंने बोला दैट इन इंडियन पॉलिटिक्स थ्रू आउट द फ्रीडम स्ट्रगल गांधी वॉज द ओनली लीडर। गांधी एकमात्र ऐसे लीडर थे जिनके खिलाफ कोई भी क्रिटिसिज्म वैलिड प्रूव नहीं हुआ। नो क्रिटिसिज्म अगेंस्ट गांधी प्रूव्ड वैलिड, कोई भी नहीं। द मोस्ट बिटर क्रिटिक ऑफ गांधी, ये भी सुन लो चलो, द मोस्ट बिटर क्रिटिक ऑफ गांधी वॉज बोस। अरे तुम गांधी को क्रिटिसाइज कर सकते हो, ठीक है, पर उस व्यक्ति को समझना कितना मुश्किल है, और जिसने समझ लिया वो क्रिटिसाइज नहीं करेगा। द मोस्ट बिटर, द बिटर क्रिटिक ऑफ गांधी वाज बोस, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस और गांधी के मतभेदों के कारण एक वजह यह भी है कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी के मतभेदों के कारण ही सुभाष चंद्र बोस जो है हिंदुस्तान छोड़ के चले गए थे। बट देन यू सी, खाली एक चीज सुनना, टोक्यो रेडियो से सुभाष चंद्र बोस जब इंडियन नेशनल आर्मी को जब कूच करने शुरू करने जा रहे थे, तो उन्होंने रेडियो स्टेशन से गांधी के लिए एक संदेश भेजा, और इसी संदेश में सुभाष चंद्र बोस खुद गांधी को फादर ऑफ द नेशन का दर्जा दे रहे हैं। हालांकि ही वाज, I believe so that Gandhi, instead of calling him to the father of nation, as the father of nation, he must, father of India, he must be called as the nation builder. ये मेरा अपना है, कभी चर्चा करेंगे। ऑफ कोर्स मैंने भी पढ़ा है और वहां से जो है मैंने तथ्य लिए हैं, तो ऐसा लगता है कि यार गांधी को नेशन बिल्डर के रूप में प्रोजेक्ट करना ज्यादा जरूरी है। बट देन व्हाट सुभाष चंद्र बोस इज सेइंग, सुभाष चंद्र बोस ही इज एट्रीब्यूटिंग गांधी एज फादर ऑफ नेशन, बापू। अरे अभी तो क्रिटिसिज्म कर रहे थे। और इतना ही नहीं भाई, इतना ही नहीं, उसी रेडियो स्टेशन से सुभाष चंद्र बोस देखो क्या बोल रहे हैं, उसी रेडियो स्टेशन से सुभाष चंद्र बोस बोल रहे हैं दैट आवर लास्ट कॉन्फ्लिक्ट इन फ्रीडम स्ट्रगल हैड स्टार्टेड बापू, एंड आई नीड योर ब्लेसिंग्स। ये सुभाष चंद्र बोस बोल रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस क्या बोल रहे हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल में हमारा आखिरी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है, फ्रीडम स्ट्रगल में हमारा आखिरी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है, और मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। बापू का आशीर्वाद काहे को चाहिए भैया? बापू का आशीर्वाद काहे को चाहिए? बापू का आशीर्वाद इसलिए चाहिए क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को भी पता था हैंडफुल ऑफ इंडियन सोल्जर्स से मैं हिंदुस्तान जीत नहीं पाऊंगा तब तक जब तक पूरे के पूरे हिंदुस्तान में एक बार में पूरी की पूरी जनता खड़ी ना हो जाए, और जनता खड़ी होगी सिर्फ और सिर्फ गांधी के आह्वान पर।
if Gandhiji asks people, Gandhiji gives a statement for a nationwide movement, then only the INA, there is a possibility that INA would have succeeded. तो बापू आपका आशीर्वाद चाहिए, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक आंदोलन छेड़ दो. तो एक तरफ आप आंदोलन छेड़ोगे और दूसरी तरफ इंडियन नेशनल आर्मी अंग्रेजों को साफ करती हुई चलेगी. वेयर इज द डिफरेंस? वेयर इज द डिफरेंस? वेयर इज द डिफरेंस? दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ गांधीज इम्पेकेबल रीजनिंग. और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए, एट वन पॉइंट और द अदर all the critics of Gandhi had accepted the Gandhian ideology. ये याद रखना. आज अगर मैं बापू को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, कल को मुझे उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनकी बातों को फेवर करना पड़ेगा. I hope you are understanding this thing. That is why I am saying no criticism proved valid against Gandhi, the only leader in the Indian freedom struggle, only leader. लोगों ने पहले क्रिटिसिज्म किया और फिर बाद में उन्हीं लोगों ने गांधी को एक्सेप्ट कर लिया. दिस इज द पर्सनालिटी ऑफ गांधी. देन मिक्सचर ऑफ बोथ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट. यहां एक शब्द और जोड़ लो, एनार्किस्ट. सबसे इंपॉर्टेंट बात जो गांधी को परेशान करती थी, व्हाट हॉन्ट्स गांधी वाज, he could not accept the fact that the party who is leading the freedom struggle, उसके अंदर ही फूट है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स की. गांधी could not accept the two divisions within the Congress party in the name of moderates and extremists. And Gandhi proved to almost all the leaders, be it a moderate, be it an extremist, that no better moderate than Gandhi, no better extremist than Gandhi. गांधी ने प्रूफ कर दिया. गांधी ने ये प्रूफ कर दिया. Above all, Gandhi an anarchist. Gandhi an anarchist. This anarchist tendency of Gandhi, it used to resurface not that frequently, but when it does, it is quite difficult for the British administration to deal with. तुमसे एक प्रोबेबल क्वेश्चन पूछ सकता है, गांधीयन पर्सनालिटी वाज अ मिक्सचर. कहां दिखता है ये मिक्सचर? You see the movements. इसलिए मैंने बोला जब हम मूवमेंट्स डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें हम पर्सनालिटी को बीच बीच में लेते रहेंगे. उसमें हम पर्सनालिटी को बीच बीच में लेते रहेंगे. You see the movement, the name of the movements. पहला मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन, NCM. What is this non cooperation? You Britishers, you want us to do this thing? Sorry, we are not going to cooperate. खाली no action. कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है. सीधा एक वर्बैटिम है कि यार हम नहीं मान सकते, सॉरी. दिस इज व्हाट, दिस इज मॉडरेटिज्म. यू आर नॉट कमिंग इनटू एक्शन, यू आर सिंपली रिजेक्टिंग टू व्हाट द अथॉरिटी वांट्स यू टू डू. दैट मीन्स व्हाट, योर बिहेवियर इज रिफ्लेक्टिंग द मॉडरेट टेंडेंसी. Gandhi a moderate here. When he launched non-cooperation movement, going by the name of the movement, it seems that Gandhi is now a moderate. Whereas you see the very next movement, civil disobedience, कानून तोड़ेंगे. That means now you are going to come into action. अभी तो तुम रिजेक्ट कर रहे थे, सिर्फ बात को नकार रहे थे, एक्शन में नहीं थे. अब तुम एक्शन में आओगे, और जब तुम एक्शन में आओगे, नाउ योर बिहेवियर इज रिफ्लेक्टिंग, योर पर्सनालिटी इज रिफ्लेक्टिंग द एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसी. क्योंकि एक्शन में कौन आता था? एक्सट्रीमिस्ट आते थे. बंद बंद, हड़ताल वड़ताल, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सिविल डिसोबीडियंस में गांधी की पर्सनालिटी एज एन एक्सट्रीमिस्ट दिखती है. Whereas you see the last movement,
You see the last movement, Quit India movement. Quit India movement. The very essence of Gandhian personality was a satyagraha and non-violence. जो लास्ट मूवमेंट में दिखता ही नहीं है. क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी had not even talked about satyagraha and non-violence. क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी had simply given the slogan do or die. Do or die मतलब paralyze the government. Here Gandhi's personality is reflecting the anarchist tendencies. अराजक तत्व जैसा ही रिफ्लेक्ट हो रहा है ना. पैरालाइज द गवर्नमेंट, गांधी एन एनार्किस्ट. बॉम्बे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में he had given this slogan, right? So Gandhian personality a mixture of both moderates and extremists, and Gandhi would make sure that no better extremist than Gandhi, no better moderate than Gandhi, no better anarchist than Gandhi. किसी और लीडर में था नहीं. मॉडरेट ही है, एक्सट्रीमिस्ट ही है. किसी और लीडर में तत्व है ही नहीं. Then you have most amicable personality. Of course, why not? Of course, why not? Most amicable personality. Remember, Gandhi's personality was a perfect equilibrium between the two extremes of the society. Do remember this fact. ये शब्द नोट कर लो, ये शब्द तुमको आंसर राइटिंग में बहुत मदद करेगा. गांधी की जो पर्सनालिटी है, that's a perfect equilibrium between the two extremes of the society. Let me give you some of the examples. गांधी जी चंपारण गए. And he had become the messiah of the masses. Fine. Now just try to understand this thing. Then गांधी जी अहमदाबाद गए, खेड़ गए. ठीक, वो you have the idea of all those developments, what Gandhi or the satyagrahas, what Gandhi had initiated on his own. Fine. In his individual capacity, even before becoming the member of the Congress party. ठीक है. Now you see what had happened. Champaran Gandhi ji गए हैं, he had become the messiah of the peasant community. Remember the word peasant community. खेद अहमदाबाद गए हैं, मिल स्ट्रगल मिल वर्कर्स स्ट्राइक्स के बीच में मीडिएट करने के लिए. There Gandhi had become the leader of both the sections of the society, the working class and the labor class, the capitalist class, labor class, working class. सवाल भाई ये है कि तुम सेम समय पर समाज के दो एक्सट्रीम्स, कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लीडर कैसे हो सकते हो? अरे एक समय पर एक ही व्यक्ति जमींदार, इलाइट क्लास का भी लीडर है और लेबर क्लास, पीजेंट्स का भी लीडर है. पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है कौन? इलाइट सेक्शन. और इन दोनों का लीडर एक ही है. खाली खुद सोच करके देखो, ये और किसी लीडर के बस की बात नहीं थी, या उस दौर में ये काम कोई और लीडर कर नहीं रहा था. चलो इतना ही नहीं. मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि सॉन्ग सेलेस्टियल का मैंने आप लोगों को रेफरेंस दिया. गांधी वॉज ऑलवेज ऑफ द वर्ड कॉल्ड रामराज. ही वॉज फॉर द वर्ड कॉल्ड रामराज. ठीक है, तो जब गांधी रामराज की बात करेंगे तो ऑर्थोडॉक्स हिंदू सेक्शन ऑफ द सोसाइटी डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गिव सपोर्ट टू गांधी. फाइन. बट देन सेम गांधी, while he was the leader of the Hindu sections of the society, the same Gandhi was the leader of the Muslim community. Ali brothers had nominated Gandhi to be the chairman of the Khilafat committee. अरे कैसे समझे ये? कैसे समझे? This is quite interesting, right? No leader of those time had reflected such a mixed personality, amicable personality than Gandhi. This is quite something interesting.
इसीलिए इसीलिए गांधी जी उस दौर के सारे लीडरों से अलग थे. क्रिटिसिज्म होता है, यू हैव द क्रिटिसिज्म of almost all the leaders, so why not Gandhi? Of course, but then it should be logical. Logical होना चाहिए. Then you see the last paradigm shifter. यार you will be damn surprised to note. अच्छा, ये त्रिभुज याद रखना है ना, ट्रायंगल, इसको ऐसे याद रख लो. Just try to remember such in such a way. एक तरफ मैं गांधी को बोल रहा हूं पैराडिम शिफ्टर, ठीक, हम इस पे बात करेंगे. तो एक तरफ तो गांधी जी दिख रहे हैं पैराडिम शिफ्ट, दूसरी तरफ गांधी जी ही इज चैलेंजिंग, ही चैलेंज्ड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, या आई शुड से कल्चर. ठीक, संस्कृति को ही चैलेंज कर दिया, नॉट जस्ट द ब्रिटिशर्स बट द वेस्टर्न कल्चर. एंड एट द सेम टाइम ही हैड प्रोवाइडेड एन अल्टरनेटिव आइडिया ऑफ मॉडर्निज्म. अल्टरनेटिव मॉडर्निज्म, अब खाली समझो यार ये व्यक्ति सोच कैसे रहा है. देखो, ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज करना एकमात्र उद्देश्य नहीं है. ब्रिटिशर्स की संस्कृति जहां से वो आए हैं उनको भी तो क्रिटिसाइज करो. अगर तुमने ब्रिटिशर्स को हिंदुस्तान से भगा दिया और उनकी संस्कृति को अपना लिया, तो फिर क्या तुमको खाक आजादी मिली? तो क्या तुमको खाक आजादी मिली? फ्रीडम, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. हालांकि चलो हम आगे बात करेंगे, अदरवाइज ये लेक्चर कुछ ज्यादा लंबा खिंच जाएगा. पर व्हाट डज दिस वर्ड कॉल्ड पैराडाइम शिफ्टर इज, यू नो, इट मीन्स टू यू. इंडियन पॉलिटिक्स में या फॉर दैट मैटर पॉलिटिक्स में गांधी को हम कॉमन लाइंस पे जज नहीं कर सकते. गांधी को हम कॉमन लाइंस पे जज नहीं कर सकते. कॉमन लाइंस का मतलब यह हुआ कि जो पैरामीटर तुम बाकी पॉलिटिशियंस को जज करने में या बाकी पर्सनालिटीज को इन दी आइडिया पॉलिटिक्स में जज करने के लिए यूज करते हो, उन पैरामीटर्स के हिसाब से या बेसिस पर तुम गांधी को जज नहीं कर सकते. ठीक है, पैरामीटर कुछ अलग होने चाहिए. Why I am saying this thing? Almost all the leaders of those times had worked according to the theories being dictated to them about the politics. तो आप लोग ने 16th सेंचुरी एक फिलोसोफर का नाम सुना होगा, मैकियावेली. मैकियावेली ने एक सिद्धांत दिया, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, एक थ्योरी दी कि यार अगर राजनीति में आना है, मैं सीधे तौर पर आप लोगों को समझा रहा हूं, बाद में इसके बारे में कभी मौका मिलेगा तो चर्चा करेंगे. वर्ल्ड हिस्ट्री तुम्हारे में है नहीं, पर ठीक है, मौका मिलेगा तो देखेंगे. मैकियावेली ने एक सिद्धांत दिया जिसमें यू नो वो बोलता है कि अगर राजनीति में आना तो तुमको तुम्हारे वर्च्यूज, स्पिरिचुअलिटी, धर्म, ये सब दूर रखने पड़ेंगे. ठीक, तो इट इज क्वाइट, आई मस्ट से, नॉट एक्सेप्टेबल टू गांधी. ठीक है, पैराडाइम शिफ्टर का मतलब सीधा सीधे तौर पर यही है. आप लोगों ने शब्द सुना होगा, एंड जस्टिफाइज द मीन्स. ठीक, तो ये एक सिद्धांत जो है उसने दिया है. फाइन, पॉलिटिकल रियलिज्म का फादर बोलते हैं मैकियावेली को. तो स्पिरिचुअलिटी, यू नो फॉर दैट मैटर, कि अपनी ईमानदारी और ये सब चीज़ें जो है साइड में रख करके तुमको राजनीति में, या राजनीति में जो भी कोई आता है तो इन सब चीज़ों को साइड में रख करके आता है. गांधी ने पूरी धुरी बदल दी है. पैराडाइम शिफ्टर का मतलब यही होता है. गांधी ने पूरा राजनीति का पैटर्न बदल दिया. गांधी ने, इसलिए मैं बोला ना, द पर्सन हु इज वेरी मच हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग विद रिगार्ड्स टू ऑल द आइडियाज, ऑलमोस्ट ऑल द आइडियाज, विल ट्राई टू अमेंड सच आइडियाज फॉर हिज ओन बेनिफिट. वो गांधी से बेहतर कोई नहीं कर पाया. वो गांधी से बेहतर कोई नहीं कर पाया. पहले जिस राजनीति में घुसने पर लोगों को क्रिटिसाइज किया जाता था कि यार उसने अपना ईमान बेच दिया, वो झूठ बोलता होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, गांधी ने उसमें धर्म ले आया, गांधी में उसमें स्पिरिचुअलिटी ले आया उसी राजनीति में. उसके बाद लोगों ने कभी क्वेश्चन नहीं किया.
राजनीति करने का तरीका ही गांधी ने बदल दिया। पैराडाइम शिफ्टर इस सेंस में बोल रहा हूं मैं, राजनीति करने का तरीका ही गांधी ने बदल दिया। तुम खाली एक चीज सोचो, गांधी का ये जो आइडिया था सत्याग्रह है, जो उन्होंने अगेन फ्रांस से लिया था, थॉरियो के काम से लिया था, पैम्पलेट से सत्याग्रह का आइडिया, सिविल डिसोबीडियंस का आइडिया। तुम खाली खुद ये सोच करके देखो, पैराडाइम शिफ्टर को हम जज कर रहे हैं। एक तरफ है वेस्टर्न फोर्सेस, वेस्टर्न फोर्सेस मतलब यहां तुम फ्रेंच ले लो, जो भी हिंदुस्तान आए, डच, डेन्स, फ्रेंच, पोर्चुगीज, ब्रिटिशर्स। जाहिर सी बात है ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए अपने खुद के की अथॉरिटीज को पावर दे रखी होगी इनने। अरे इनकी अपनी आर्मी होगी, इनकी पुलिस होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, फाइन। इनका काम क्या है, या इनका पर्पस क्या है, या इनका एम क्या है, या ये एक्शन में कब आएंगे? ये एक्शन में तब आएंगे जब दे विल एनकाउंटर एनी सॉर्ट ऑफ वायलेंस, तभी ना आएंगे, तभी ना आएंगे। ऑपरेसिव मशीनरी का यूज किस लिए किया जाता है? विद्रोह को दबाने के लिए, वायलेंस को दबाने के लिए, तभी होगा। गांधी ने राजनीति की धारा ही बदल दी। गांधी ने बोला हम वायलेंस करेंगे ही नहीं हम आंदोलन करेंगे, वायलेंस नहीं करेंगे। जस्ट ट्राई टू इमेजिन, गांधी क्या बोल रहे हैं? हम आंदोलन करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, वायलेंस नहीं कर रहे। सो इट डज नॉट जस्टिफाई यू टू बीट अस ब्लैक एंड ब्लू। सॉल्ट सत्याग्रह में, दांडी मार्च में बहुत बात करेंगे, आंकड़ों के अनुसार बात करेंगे। सॉल्ट सत्याग्रह में, दांडी मार्च में अंग्रेज ये कयास लगा रहे थे, ब्रिटिशर्स वर ऑफ द व्यू दैट अगर सॉल्ट लॉ टूट गया तो इससे ब्रिटिशर्स की छवि खराब होगी, ठीक? तो ब्रिटिशर्स की हुकूमत चैलेंज कर दी जाएगी अगर सॉल्ट, जाहिर सी बात है तुम्हारा कानून अगर मैं तोड़ दूं तो जाहिर सी बात है तुम्हारी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल हो जाएगा ना। तो वही अंग्रेज क्या कर रहे थे? अंग्रेज इस आंदोलन सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च से जुड़े हुए लोगों के ऊपर लाठियां बरसा रहे थे। और खाली खुद सोच करके देखो कि लोग खुद को बचाने तक के लिए हाथ नहीं उठा रहे हैं, तो भैया मार ले, लाठी ले, मार ले। वो नमक बना रहे हैं, पीछे लाठियां पड़ रही हैं और वो नमक बना रहे हैं। और एक फोटोग्राफर ने इसकी फोटो खींच के पूरे यूरोप में चला दी। अब खाली इमेजिन करो, अंग्रेज बोल रहे हैं कि यार हिंदुस्तान के लोग नमक बना रहे हैं, जाहिर सी बात है ये हमारी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल है, और बिना विद्रोह किए हम हिंदुस्तान के लोगों को मार रहे हैं, इससे हमारी पूरे यूरोप में छवि खराब हो रही है। अंग्रेज इसके लिए तैयार ही नहीं थे। अंग्रेज तैयार किसके लिए थे? अंग्रेज तैयार इसके लिए थे, अंग्रेज तैयार इसके लिए थे। वायलेंस हुआ नहीं कि भैया हमने ठोकना किया शुरू, पर यहां वायलेंस ही नहीं हो रहा, यहां तो सत्याग्रह है, सत्य के प्रति आग्रह, यहां तो सत्याग्रह है। यहां तो आदमी खुद लाठी बरस रही है उसके ऊपर और खुद को बचाने तक के लिए हाथ नहीं उठा रहा, बेहोश हो जा रहे हैं। दिस वाज समथिंग what the politics of those times had never imagined, the leaders of those times had never imagined. That had made Gandhi something, someone who was quite different than those of the contemporary leaders. इसलिए बापू को सोचो, उसको समझो। क्रिटिसिज्म करने से पहले उनको समझना जरूरी है। फाइन, सो वी आर गोइंग टू कम टू द क्वेश्चंस वन आफ्टर द अदर। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग 2-3 क्वेश्चन तो स्वाभाविक सी चीज है, इट इज क्वाइट
for sure you are being asked, you know, you will be asked in the examination, आप लोगों से पूछा जाएगा. So we are going to prepare accordingly, and this is just the beginning. We are going to talk about Gandhi a lot. We are going to have a thorough understanding of the Gandhian personality first. We have already done it, and then we are going to talk about the Gandhian movement, his efforts, his logics to everything what he had done. Logics are important. ठीक है, गांधी के द्वारा किए गए हुए कामों के पीछे की वजह आप लोगों को पता होनी चाहिए. फिर आप जज करो, फिर आप अपना एक ओपिनियन बिल्डअप कर लो. लॉजिकल होना चाहिए, उसके बाद उसको प्रोड्यूस कर देना. एमपीपीएससी पूछेगा तो फाइन. सो वी आर गोइंग टू कवर गांधी. वील टेक होल लॉट ऑफ यू नो, ठीक ठाक हम समय लेंगे, और उसके बाद फिर हम गांधी जी को वाइंड अप करेंगे पूरे टॉपिक को. एंड ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है, ये मत समझना कि गांधी जी नहीं होते तो आज़ादी नहीं मिलती. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. गांधी जी नहीं भी होते तो भी हमको किसी ना किसी तरीके से कभी ना कभी आज़ादी मिल जाती. सो डोंट जस्ट कैरिड अवे बाय व्हाट आई हैव सेड जस्ट नाउ. मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि गांधी जी थे तभी आज़ादी मिली है. और मैं बोलूँगा यार, ट्रू सेंस में हम 15 अगस्त 1947 में जो हमको आज़ादी मिली थी, वो रॉबर्ट क्लाइव से आज़ादी मिली थी. बेंटिक से आज़ादी हम नहीं ले पाए थे. ठीक है, तो सोचने वाली बात है. फाइन. ऑप्रेसिव टेंडेंसीज से तो हमको आज़ादी मिल गई, ठीक, पर वो ऑप्रेसिव टेंडेंसीज किन बातों के आधार पर यहां काम को अंजाम दे रहे थे, वो यहीं रह गए. वो आधार यहीं रह गया, वो फाउंडेशन यहीं रह गया. इसलिए तो देखो आज की सरकार क्या कर रही है. वी मस्ट डेफिनेटली हेल टू व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू टुडे. आज हमारे लीगल सिस्टम को एक नया रूप दिया जा रहा है. क्यों? क्योंकि आउटडेटेड सिस्टम है भैया. ये अंग्रेजी संस्कृति को रिफ्लेक्ट कर रहा है. बात आ रही समझ में? ये बीएनएसएस, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता, ये सब क्या है? धाराएं हम बदल रहे हैं, कोनोटेशन हम बदल रहे हैं. यही तो बापू बोल रहे थे. अंग्रेज चले जाएंगे और अगर इनकी चीजें यहां रह गई तो फिर हम कैसे आजाद हो पाएंगे? सेम इज द थिंग हियर. ये ऑल्टरनेटिव मॉडर्निज्म क्या है भैया? एक मॉडर्न आइडिया, एज एन आइडिया जो हमारे पास है, वो अंग्रेजों ने हमको दिया है. उसमें हमारा कुछ भी नहीं है. We Indians, we are very much happy, thumping our chest. Fellow, we are modern now. What is the basis of you becoming or calling yourself as modern? Basis क्या है इसका? ये वेस्टर्न के, अंग्रेजों के द्वारा मॉडर्न आइडिया है. सो गांधी आएंगे, इसके ऊपर भी आएंगे. ऑल्टरनेटिव मॉडर्निज्म क्या था गांधी का? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस ऑल्सो. Fine, so thank you so much. Have a great day. I had taken a whole lot of time of yours. इतना लंबा सेशन मुझे लग नहीं रहा था कि जाएगा, but then you see, होगा. ठीक है, ये टाइम शायद एक्सटेंड होता चलेगा. I'll talk more about his efforts, Gandhian efforts. बहुत लंबा टॉपिक है और आराम से चलेंगे, क्योंकि अब तो हमको 30 साल की जर्नी कवर करनी है. 47 तक गांधी जी चलते ही रहेंगे, 45 तक तो चलेंगे. 45 के बाद फिर यू नो धीरे धीरे बीच में गांधी जी आते रहेंगे. सो थैंक यू सो मच, एंड आई कुड सी दैट क्वाइट पेशेंटली यू पीपल हैड लिसन्ड टू मी. आई एम ग्रेटफुल. थैंक्स फॉर योर पेशेंस एज वेल. विल सी टुमारो. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे.